कि पहले लड़कियों को मतलब मायके लाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका था कि तीज में लेके आ रहे हैं, और काम इतना ज्यादा होता है, वैसे तो निकला नहीं जाता, इसलिए आपकी फर्स्ट डिलीवरी भी पेरेंट्स के घर होती है नॉर्थ इंडिया में कई जगह पे माना जाता है. इट इज जस्ट टू गिव द these were occasions just to give rest to the lady, because in her in-laws house she would not have time to rest, right. and the daughters would come over, they were supposed to look after the daughters of the house and so on and so forth. So yes, but when I look around myself I feel amazed, and I think that is what you say, the beauty of India. I have my maid servant who's hit by her husband, but she's so much eager and excited, sincere towards the Karwa Chauth Vart, that I do feel astonished that, you know, I've read in so many books in so many places that it is the women in India who are continuing with the family, you know, traditions and just keeping the family together. So yes, we talk about gender equality in conferences by writing books and all, but जहाँ पे एक भाई बहन का रिश्ता आता है वहाँ पे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं. कॉलीग्स जब प्रोफेशन में हम पढ़ते हैं वहाँ पे हम मेल कॉलीग्स और फीमेल कॉलीग्स में आपस में जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, पति पत्नी में भी रहता है. बट ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे आके कहीं ना कहीं लगता है, ये तो वर्ड मैं यूज नहीं करूंगी कि कहें कि औरत कमजोर पड़ जाती है, मगर शायद औरत एक औरत बन के उभरती है. Yes, I think in India, especially with the Indian woman, wherever she is required to fast or do anything for the family, it may be a fast for the sons of the family. Of course, I know many friends who keep the fast for their daughters also now. It may be fast for the children, it may be fast for the husband, it may be any puja. The Indian women are doing it, you know, they are continuing it. Yes, there's a lot of show attached to it now, and I think somewhere the media is responsible for it, you know, for glorifying it. सारी घूम फिर के बात तो हमारे ऊपर ही आती है. Yeah, because when you see 10 cities and you see well, you know, beautifully decked up ladies, and you feel why not me, you know, so next time you start gearing up for the right. I don't think gender equality has anything to do with Karwa Chauth. जी. See, if you are talking in terms of gender equality, then the Teej ka, that other tyohar which you do for the sun, that is gender equality. Yeah, that is that vrat you are doing only for your sun. There is nothing which is so that is where the problem is. India, you're going to stick to one husband. It's not like America. They talk of gender equality more. Right. So you're going to stick to one husband all your life. So you want a long life of the husband, who in 80% of the people is going to feed you. See, let's not talk about 20-30 elite crowd and the educated crowd and financially independent women. जो दूसरी 80% 70-80% जो आदमी पे निर्भर है, it makes a big thing, a big difference. Absolutely, absolutely. So that is it. पर यहाँ पे एक बात ये भी है कि जो लोग व्रत रख रहे हैं, आप 364 दिन तो घर पे क्लेश है, एक दिन आप व्रत रख रहे हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं. ओके, ठीक है ना. ज्यादातर कई घर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपस में नहीं बनती, हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते एक दूसरे की, मगर फिर भी व्रत रख रहे तो उसकी क्या फीलिंग होगी. मगर उसका भी मैं आपको उसका भी बात कर सकती हूँ. जैसे डॉक्टर पुनीत ने कहा था कि अगर आप एक बार नहीं रखते हो तो अगर कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है तो आप उसके लिए जिम्मेदार ठहरा जाते हो. तो अगर 364 दिन आपको किसी न किसी मुद्दे पर ब्लेम किया जाता है तो वो एक दिन तो ऐसा है साल में जो औरत जहाँ पे वो बचना चाहिए. पर इसमें एक और चीज है, कुछ लोग लज्जा पास आ रहे हैं, एक चीज है लोक लज्जा, उसके लिए भी लोग रखते हैं ढकने के लिए. परिवार वाले रिश्तेदार, व्हाई वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक. मेरा कहना यह है कि यदि आप सही महीने में रखोगे तो इसकी फीलिंग का मजा ही बखरा है, ना प्यास लगती है ना भूख. वो तो आपसे बता सकते हैं. एग्जैक्टली नहीं लगती है. मैं सर्गी में विश्वास नहीं करती हूँ. मैं सुबह सो रही थी, मेरे हस्बैंड ने सुबह जबरदस्ती जगाया, कहते कुछ तो ले ले. मैंने कहा अच्छा थोड़ी सी चाय बना दो. उन्होंने चाय बनाई, साथ में सेवैयां बना के लेके आए. मैंने एक चम्मच खाया बस, और बाकी सब लोगों ने, बच्चे उठ गए, सब उठ गए. तो वो एक मजा था. सुबह सुबह 5 बजे सब सारा कुछ बनाया, मिसी उन्होंने खाया, मुझे उठाते रहे. मैंने कहा नहीं मुझे 1 घंटा सोने दो, फिर भी नहीं माने. मुझे नारियल और 1 चम्मच उसका फेनिया कहते हैं हमारे पंजाब में, वो दिए 1 चम्मच. तो आपका जो आपका खुद का विश्वास है, आप उस विश्वास को फॉलो करके ये व्रत रखते हो, ना कि जो इसके लिए रिलीजियस रूल्स बनाए हुए हैं. यदि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, यदि ये मान लिया जाए कि इस व्रत से उम्र बढ़ती है तो इसलिए दोनों की बढ़े, इसलिए उसकी बढ़े, और यदि नहीं है तो इसलिए है कि जब वो भूखी रह रही है तो मैं भी भूखा रहूं. इसलिए सबको चाहिए. एब्सोल्युटली. डॉक्टर कमलप्रीत, आजकल बहुत देखा गया है कि जो यंग कॉलेज गोइंग क्राउड है, जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, दे आर नॉट एंगेज्ड, एंड
बट स्टिल यू नो वो भी इस व्रत को रखते हैं, तो ये समझा जाए कि वो एक फैशन स्टेटमेंट है जिसको वो फॉलो करती हैं? See, I know of girls as old as 8-9 years old going to very good schools, posh schools in the, as they say, in the city. I can understand about a girl getting who's got engaged and keeping fast, because as Dr. Dogra says, you are living with that person throughout your life. I can't understand this younger generation who are not yet committed anywhere and too young to understand. Too young also to what is the understand. significance of it. मैं एक बात और मेंशन करना I चाहता don't हूँ, understand their feelings and I इसलिए भी रखा जाता है। अब पुरानी जो रिवायत है ना, उसमें भी ये है कि जो छोटी लड़कियां जो 15 अब 5-15 साल के बाद की हैं, वो व्रत रखती हैं और वो छोटा करुआ कहते हैं उनको, ऐसा होता है, वो रखती हैं और वो तारे को देख के अर्घ देती हैं तारे को। वो इसलिए रखती हैं कि उनको सुंदर और अच्छा पति मिले। ये भी एक रिवायत है। अच्छा, इसकी और भी मतलब है, पर एक रीजन है, जैसे बर्थडे पे यू फील डिफरेंट, आपको लगता है मैं स्पेशल हूँ आज। एक स्पेशल फीलिंग होती है व्रत रखने की। मेरी बेटी छोटी सी है 8 साल की, वो कहती है मैं भी पापा के लिए व्रत रखूंगी। और मैंने कहा बेटा आपके लिए मुश्किल होगा, नहीं मैं पानी भी नहीं पीऊंगी इस बार। और मैं ऑफिस चली गई, उसके बाद घंटे के बाद मामा पानी की प्यास लगी है, पी लूं? मैंने कहा पी लो। फिर थोड़ी देर के बाद मामा बहुत भूख लगी है, मैंने ब्रेड खा लिया पर रोटी नहीं खा सकती, मुझे परांठी खानी है। सो फिर वो भी खा लिया करते करते, उसके बाद अब शांति है उसमें। Here it is a very healthy relationship, you know. The child starts off by aiming to do the way you want to get good marks. No, but that's what I'm saying. They want to be part of that celebration, feeling of being special. As it is, October month is celebration time in India. Right. It's celebration time. We all want to celebrate. एक यहाँ पे सवाल है डॉक्टर मंगला, कुछ साल पहले अगर मुड़कर देखें तो ऐसा लगता था कि पति ही हर सवाल का जवाब है, पर अब सवाल ये है कि वो एक सवाल भी है या नहीं। मैं पति की बात कर रही हूँ। कहने का भाव ये है कि उनके ऊपर जो डिपेंडेबिलिटी है औरत की वो इतनी कम हो गई है, तो क्या अभी भी इस त्योहार के उतने मायने हैं? मेरे को नहीं लगता कि जो नई जनरेशन है they will be that sincere with this festival. I don't think. Okay, अब मगर इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने व्रत रखा है और आप गिफ्ट लेने के लिए या किसके लिए। हमारा 13 साल हो गए, मुझे 13 साल हो गए we are the other generation. डॉक्टर मंगला इज इंडिपेंडेंट, राइट, we are the other generation. but still we have मगर ये नहीं कि आज के दिन इसको कुछ स्पेशल देना है या कोई गिफ्ट देना है, ऐसा कोई नहीं है। खर्चे के लिए नहीं रखते। नहीं, मैं खर्चे की बात कर रही हूँ, ना मैं खर्चे की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ द सेंटिमेंट्स व्हिच कम फ्रॉम इनसाइड। मुझे नहीं लगता कि नई जनरेशन, देखिए पहले ऐसा था ना कि औरत की पूरी डिपेंडेबिलिटी ही अपने पति पे थी हर चीज के लिए। उसने सिर्फ वो एक घर की चीज है, वो ना बाहर जा सकती थी, ना पढ़ी लिखी थी, ना कमाती थी। अब औरतें कमाती हैं बाहर जाके, तो उनकी डिपेंडेबिलिटी जो है वो मर्दों पे कम हो गई है। कम भी हो गई है। तो यदि ये भी है ना, एक एटीट्यूड है ना कि मुझे क्या करना है, जब मैं अच्छा भला कमाती हूँ, खाती हूँ, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, तो मुझे हो सकता है कोई एक लाइन ऐसी निकल आए जो इस चीजों पे ध्यान देती हो। मगर अदरवाइज यदि आप देखें तो ये तो है ना कि आगे ये होता था कि आगे त्योहार ही होते थे, दिवाली है या कोई दुशहरा है या कोई शादी है, तभी हमारे घरों में शॉपिंग होती थी। अब तो हर सैटरडे को शॉपिंग होती है। ठीक है ना। आगे तो त्योहार, इसका मतलब ये होता है कि कोई नई चीज घर में आएगी, मगर ये नहीं गिफ्ट और मटेरियलिस्टिक। इसीलिए बोल रहा हूं, हो सकता है रिश्ते की फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। एक लाइन ऐसी होगी। तो आई थिंक रिश्ते का जो है बेस है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। The woman may have become independent financially, but for the man as well as the woman, when you're running a family, emotional dependence is always there. Emotional that will not change. No shopping, no money. 10 years later, 1 decade later, you just think, are these relationships going to continue? ये रहेंगे, बिखर जाएंगे? अगर रहेंगे, कितने सही रहेंगे और वो sentiments involved होंगे कि नहीं? You've seen this change in scenario of today's young girls and boys. Absolutely. I don't think there will be a commitment of a relationship when live-in relationships are coming up. So where is the Karwa Chauth now? I'm asking the girls who've been recently engaged. I have encountered a few of them. और वो यही कहते हैं, अरे वो रखेगा तो मैं रखूंगी, वो क्या कर रहा है। So I think वो तब तक रिश्ता अभी उनका जुड़ा नहीं है, जुड़ेगा, हो सकता है चीजें बदल जाएं। नहीं,
फीलिंग होने के बाद आपने भी शुरू किया बाद में जैसे, ठीक है, सब ऐसे हो सकता है ना कि जब आप मिलेंगे रिलेशन उसके बाद क्लोज होंगे तभी आपको लगेगा ना एक दूसरे के लिए हमें। पर ये अच्छी बात है कि लड़कियों ने पूछना शुरू किया है कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है। सो कुछ हद तक अच्छी चीजें भी होती हैं। और एक बात है इस त्योहार को लेकर जो मार्केटिंग गिमिक्स देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि पूजा की थाली भी जो है वो भी एक्सपेंसिव हो जाती है। एक हाथ पे मेहंदी जो है वो 100, 150, 200, अच्छी बात है ना, एक जेब से दूसरी जेब में पैसा जा रहा है। रिश्तों की इम्पोर्टेंस और रिश्तों की अहमियत और रिश्तों का दिखावा, जो चीजें हम बहुत भूल गए थे, और ये त्योहारों की इम्पोर्टेंस, आई थिंक आई गिव क्रेडिट टू एकता कपूर। हर थाली पे नजर होएगी, हर एक छोटे छोटे एक लाइटर नोट पे हम शो खत्म करने जा रहे हैं। एक लाइटर नोट पे मैं ये सवाल सबसे पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता जो सुबह 4 बजे उठ के जो सर्गी खा ली जाती है, अगर जो लोग खाते हैं वो दोपहर के 2 बजे तक तो वैसे ही रहती है, आपको उसका एनर्जी मिलता रहता है, तो ये कहना कि आपने पूरा दिन कुछ खाए पिए बिना व्रत रखा है, ये कितना सही है? लोग रोजे भी तो रखते हैं, वो भी तो खा लेते हैं। डॉक्टर कमलप्रीत, आई थिंक खाए पिए बिना व्रत रखा है, ये कितना सही है? लोग रोजे भी तो रखते हैं, वो भी तो खा लेते हैं। डॉक्टर कमलप्रीत, I think you missed out on the water part more than the eating part, right. you know, because you are talking, you talk more, you know, and then you feel, I think water is the thing which you miss. Otherwise you really don't feel hungry till 2 o'clock or so, and when you see everybody fasting, it's okay. I actually missed the 2 o'clock, you know, till 2 o'clock. Water was something which I missed. Otherwise it's okay. You have such a एक चाय की तलब भी होती है। Yes. Because you're hooked to tea, being a professional. Absolutely. Yeah. डॉक्टर चाय की तलब होती है। I was looking forward to this fast because मैंने सोचा 1 किलो तो कम हो जाएगा वजन। चलिए एक दिन में, और वो जब आप शाम को खाएंगी तो आपको लगता नहीं है कि वो उसमें ऐड ऑन हो सकता है? नहीं खाया And about the marketing, I think we shouldn't blame only Karwa Chauth for the marketing. These days, for every festival, even Valentine's Day, even Friendship Day, Mother's Day, Daughter's Day, Father's Day, marketing, they have to sell their goods, and they know we are ready to pay because we started saving less and we are spending more. We want to spend more. We want to enjoy life, unlike our grandparents or parents who believed in saving. We want to spend, and you want to make an informed choice. बिल्कुल ही खत्म हो गया। आप सब स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बदले वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है, ऐसे में अगर करवा चौथ जैसे पारंपरिक त्योहार में कुछ बदलाव हो तो शायद इन्हें स्वीकारने में गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन बदलाव उसी हद तक हो जहां मायने न बदले। आज प्राइम में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।